show you something today. Okay. So, can you see my screen? Is it visible? Yes. Okay. Now somebody asks you, can we delete the material in the system? So we saw, right, we can create a material through MM01, right? And we can change through MM02 and we can display through MM03, right? Now question comes, can we delete a material in the system, right? Correct? So let me show you one thing. Can you see my screen? There is T code MM06. What is the T code? MM06. So in SAP, we can put the material flag for deletion. So for an example, there is one material 844 that I created yesterday, or 842, okay? Plant was 5001, correct? Press enter, right? So here, if you put here, right, deletion flag for plant, it means to say you are setting the flag for deletion for the material, correct? This means you are logically deleting the material from the system, but not physically, right? If somebody asks you a question, can we delete the material from the system? Yes, sir, we can do it. We can set flag for deletion through T code MM06. That is one thing, right? But to completely remove the material from the system, there is one more T code, that is let me show you /O a T code, right? SARA, SARA, right? That is separate T code to completely delete the material from the system. Through MM06, right? We can put the flag for deletion only, okay? So that is interview question. If somebody asks you a question, can we delete the material from the system? Yes, we can do it. First thing we need to do, we need to set flag for deletion through T code MM06. Then through T code SARA, that is SARA, we call it, right? We can archive the material and we can delete completely from the system. That is a logic, okay? Anyhow, I have never done this activity in real-time system, okay? I have never deleted material completely from the system, but this is what I know. If somebody asks a question, how we can delete the material from the system, there are two things. First thing, we can set flag for deletion through T code MM06, and through SARA T code, we can archive the material and we can delete it completely from the system. Got it? So this is just for your information. Understood? I understood or Yes. not? So for an example, Yes. here M06, if I put this flag, deletion flag, and I save it, okay? Deletion flag chain, right? Now, if I'm going to make any changes in the material, you will get a warning message. For an example, let me select same material, data 1, data 2, purchasing, accounting 1, accounting 2. Plant is 5001. What system is saying? Added two deletion flags are set. System is saying you have already set deletion flag for this material. Got it? This is a warning message. So system is telling you you have already put a deletion flag for this material. Got it? Understood? Clear है? Can tell me understood or not? अगर आपको मटेरियल को डिलीट करना है सिस्टम में, राइट, दिस इज द वे दैट यू कैन डू इट. यू कैन सेट अ डिलीशन फ्लैग सेट फॉर दैट मटेरियल थ्रू टी कोड MM06. एंड अगर आपको परमानेंटली सिस्टम में डिलीट करना है, राइट, तो उस केस में हमारा टी कोड क्या होता है? SARA, राइट? थ्रू दैट वी नीड टू, सो दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी, राइट? अभी आपको इसकी नीड नहीं है. व्हेन वी गो अहेड ना, देन आई विल टेल यू यूज ऑफ टी कोड सारा एज वेल, ओके? अभी इतना समझ लो. समबडी आस्क यू, can we delete the material from the system? Yes, we can do it through two T code. First MM06. Through that we can set the deletion flag set, and another T code is SARA, right? Through that we can delete the material completely from the system. Okay, and I will tell you the use of T code SARA as well. Perfectly fine. That make sense? Yes, sir. ठीक है. अभी लास्ट में आई वाज टेलिंग यू कि अभी मैं अपने प्लांट मटेरियल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना? ये बताया था ना, आई टुक अ रैंडम प्लांट 5001, राइट? नाउ टुडे लेट मी ट्राई टू गेट अ मटेरियल एट माय प्लांट. ठीक है, वो ट्राई करते हैं. Select industry, mechanical engineering, and another thing, metal type Z,
B80 राइट, जो हमने कर लिया था करेक्ट. और लेट मी टेक ROH only. Okay, then we'll see. PQ raw material. Data 1, data 2, purchasing, scroll down, accounting 1, accounting 2, press enter. My plant was BAT0 करेक्ट. ये प्लांट था ना जो मैंने बनाया था बाटा के लिए. Can you remember? I created two plant, Bata 0, BAT 0 and BAT 1. So now I am going to create a material at my plant BAT 0. That is a newly created plant, correct? Now let me press enter. What I'm getting? Material ledger must be shared productive for valuation area BAT 0. वैल्यूएशन एरिया मतलब क्या होता है? प्लांट होता है इन टर्म्स ऑफ फीको. जो फीको की टीम में है वो प्लांट को क्या बोलते हैं वो लोग? वैल्यूएशन एरिया. ठीक है, इतना समझ में आया. अब हाना में क्या होता है गाइस कि आपने अगर कोई भी नया प्लांट बनाया है तो उस पर आप डायरेक्टली मटेरियल क्रिएट नहीं कर सकते अंटिल आप उसका मटेरियल लेजर एक्टिवेट नहीं कर देते हो. अब बोलोगे ये क्या होता है, राइट? करेक्ट. आपके माइंड में थॉट आएगा ये क्या होता है. मटेरियल लेजर एक्टिवेशन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ हाना. और रियल टाइम में कौन करेगा? ये करेगी फीको टीम. कोई भी नया प्लांट बनेगा तो उस पर लेजर एक्टिवेट कौन करेगा? फीको टीम करेगी. कौन करेगा गाइस? FICO team. फीको टीम करेगी. बट यहाँ पर फीको टीम तो हमारे पास है नहीं. We don't have any FICO consultant here in this training, correct? So now here we do not have any FICO team, right? So what we have to do? Give me a moment. Let me add him. So guys, what we have to do here? We have to activate the material laser at our plant. रियल टाइम में कौन करेगा ये एक्टिविटी? फीको टीम. बट यहाँ पर हमारे पास कोई फीको टीम नहीं है. तो वी हैव टू एक्टिवेट द मटेरियल लेजर एट अवर प्लांट. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मटेरियल लेजर एक्टिवेशन एट प्लांट लेवल. अंडरस्टूड? जब तक आपका मटेरियल लेजर एक्टिवेट नहीं होगा आपके प्लांट पे, यू विल नॉट एबल टू क्रिएट अ मटेरियल एट योर प्लांट. Let me get one document. Whenever you create a new plant in HANA, you will not able to create material at that plant until you activate material laser at that plant. In real time, it will be done by FICO team. Guys, understood? But यहाँ पर FICO team तो है नहीं. Let me show you. So now stepping 2. You all have to do this activity for your plant guys. ठीक है ना? आपको अपने प्लांट के लिए लेजर एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप मटेरियल क्रिएट कर पाओगे प्लांट में. अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू क्रिएट अ मटेरियल एट योर प्लांट.
when you try to create a material at any new plant, you will get below error. Now we have to activate the material laser at this plant. So now path in SAP to activate material laser. First, let me go ahead. Path is SPRO IMG. Now here we go for a controlling. Scroll down. थोड़ा सा ऊपर रहेगा. Wait. Controlling. What cost controlling? Actual costing material ledger. Yeah. Controlling. Then first thing, assign currency types and define material ledger types. ये पहला step है. Real time में you will not do this activity, but during training you have to learn this part as well, and it is a actually benefit for you only, right? When you go for interview, na, if you tell them that we know how to activate the material ledger, right? So it is a plus point for you. Now, first what we will do, we'll go here, we'll click on assign currency types and define material ledger types. Go here. Now we will on this screen. Here, select this, go for a new entry. Now, when you click on new entry, here create a new material ledger. Let me give some name. BAT. मैं सेम नाम दे दे रहा हूँ. So here I have given a new name बाटा. आपको रियल टाइम में कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको उससे मतलब ही नहीं होगा, ठीक है ना, बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू क्रिएट मटेरियल एट योर प्लांट. और हमें चाहिए अपने प्लांट पर मटेरियल क्रिएट करने ही करने, राइट? तो आपको करना ही पड़ेगा ये. Go here, Control V. Now click on save. Done. हो गया. अभी पहले स्टेप हमने क्या किया है, हमने पहले स्टेप में एक ना नया मटेरियल लेजर बना दिया है. आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं है क्या लेजर है, क्या बना है. इट हैज नथिंग टू डू विद कंसल्टेंट. ओके, बट एट लीस्ट यू नीड टू लर्न. आप सीख लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन रियल टाइम. मयंक, इट्स ओके. मयंक, समीर, रोहन, यस सर. ठीक है ना? Yes, sir. यस सर. हमारी एक्टिविटी नहीं है रियल टाइम में, बट वी हैव टू लर्न इट. जस्ट बिकॉज वी हैव टू एक्टिवेट मटेरियल लेजर एट ऑल द प्लांट्स व्हाटएवर वी आर क्रिएटिंग, देन ओनली सिस्टम विल अलाउ यू टू क्रिएट अ मटेरियल एट योर प्लांट. ठीक है, ये नई नई फंक्शनलिटी S4 HANA में, तो वो हमें करना ही पड़ेगा. इसके बिना वी विल नॉट एबल टू क्रिएट अ मटेरियल एट आवर प्लांट. ओके, चलो sit done. Go into SAP again, go back. Now हमारा कहां पर है मटेरियल लेजर?
ये रहा, क्या था हमारा मटेरियल लेजर हमारा था BATA, ये रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ जाना है, डिफाइन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लिक ऑन define individual characteristics, go there, let's go into the system, go here। ठीक है, कंपनी कोड करेंसी, अभी आप इतना याद रखो, ठीक है ना, इट्स ऑल अबाउट ओनली कंपनी कोड करेंसी, ठीक है ना। कंपनी कोड करेंसी मतलब जहां पर आपका कंपनी कोड है ना, उसकी करेंसी, दैट्स इट। जैसे हमारा कंपनी कोड इंडिया में था, बाटा, राइट, तो करेंसी, कंपनी कोड करेंसी क्या होगी, INR, तो INR की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। और आपको कुछ याद नहीं रखना भी। I will tell you meaning of different currency, company code currency, group currency, okay, document currency। Tell us now, go back from here, don't do anything, go back, go back, next step, assign material ledger types to valuation area। सिस्टम कह रहा है आपसे असाइन करो मटेरियल लेजर को, किससे, वैल्यूएशन एरिया, मतलब प्लांट से, अंडरस्टूड। वैल्यूएशन एरिया मतलब क्या होता है, फिको के टर्म्स में क्या बोलते हैं प्लांट को, वैल्यूएशन एरिया। तो यहाँ पर हम सेम चीज कह रहे हैं, assign material layer types to valuation area or plant। Click on this, when you go into system and click on this part, second part, now right, हमारा प्लांट क्या है, BAT0। देखते हैं हमारा प्लांट क्या विजिबल है यहाँ पर। when you go to position ना, पोजिशन में जाके अपना प्लांट डाल सकते हो। BAT0 नहीं विजिबल, राइट। गो टू न्यू एंट्री, जो हम नया प्लांट, अपनी नई एंट्री हम डाल देते हैं, अपना प्लांट डालते हैं, और क्या डाल देते हैं, अपना मटेरियल लेजर जो हमने भी नया बनाया है। Go here and click on new entry, Control S to new entries। पहले इसमें क्या था, मेरा प्लांट BAT0 यही था, और मैंने मटेरियल क्या बनाया था, BATA, ये बनाया ना, बाटा, करेक्ट। प्रेस एंटर, डाल दिया मैंने, दैट्स इट। So here in new entries, you put your plant or valuation area, and you have also entered material whatever you have created, BATA. So that we have entered here. Now just save this data. Now save this data. Control S. Now once you go here, from here you can save the data. Done. Done. Right? There is no issue till here, right? Go back. Go back. Next step. Activate material ledger for valuation areas. Go here. थर्ड स्टेप, तीन स्टेप जो हमें याद रखने हैं। पहले में मटेरियल डिफाइन करो, दूसरे में उसको असाइन कर दो प्लांट को, और तीसरे में एक्टिवेट कर दो मटेरियल लेजर को, दैट्स इट।
Go here. Now go here, click on this active material formulation areas. Now first सिस्टम सेइंग चेक मटेरियल सेटिंग, सिस्टम आपसे बोल रहा है कि पहले आप सेटिंग चेक कर लो मटेरियल की एक्टिवेट है कि नहीं है ये, राइट? तो विल गो फॉर सिस्टम. प्लांट क्या है मेरा? BAT0, यही है ना? करेक्ट गाइज और नॉट? मैं प्लांट BAT0 की तो बात कर रहा हूं मैं भी. मयंक, रोहन, समीर, Yes, sir. Yes, sir. हम टॉकिंग अबाउट प्लांट Yes. BAT0. मैं इसी पर तो कर रहा था, मतलब क्रिएट नए प्लांट पर. भाई मेरा प्लांट BAT0 है एंड आई हैव टू गेट अ मटेरियल एट माय प्लांट. तो सिस्टम सेइंग मटेरियल इज नॉट एक्टिव. आप उसको एक्टिवेट करो तभी सिस्टम आपको अलाउ करेगा. ना एग्जीक्यूट करो उसको. तो लेट मी क्लिक ऑन एग्जीक्यूट. यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? मटेरियल एक्टिव नॉट, राइट? इसका मतलब ये हमारा मटेरियलाइजर इस पे एक्टिव नहीं हुआ है हमारे प्लांट पर, करेक्ट? एग्री गाइस? अब दिख रहा है ना हमें चेकबॉक्स हमारा क्या है? ये देखो यहाँ पर एक्टिव नहीं है अभी. नाउ गो बैक. मैं क्या करूं भैया, मेरा एक्टिव नहीं है, लेट मी गो बैक. अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है तो यहाँ गो बैक. गो बैक. नाउ क्लिक ऑन एक्टिवेट मटेरियल लेजर. क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप, एक्टिवेट मटेरियल लेजर. ठीक है. यहाँ पर मेरा क्या प्लांट था? मेरा BAT0. ये रहा. यहाँ पर आपको फिक्स रखना है प्राइस डिटर्मिनेशन आपका, यहाँ से आपको 2 ही रखना है, ठीक है? दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको वहां पर. और यहाँ पे क्या कर देना है? ML एक्टिव. अभी मैंने क्या किया, यहाँ 2 चीजें कर दी मैंने. एक में डाल दिया प्राइस डिटर्मिनेशन 2 एंड ML एक्टिव वाला चेक बॉक्स है, उसको मैंने चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया. नो. सेव इट. कंट्रोल S. मैंने इसको क्या किया, अभी इसको भी सेव कर देता हूँ. अब बस नहीं, ये वाला नया पॉपअप मैसेज आएगा. जस्ट प्रेस एंटर एंड दैट्स इट. डन. डन. डेटा वाज सेव. इसका डेटा बार सेव हो गया. नाउ लेट्स चेक इट. डन.
go back and check now ledger is active or not. What I will do, I will go here, we'll go back active material ledger, go to, sorry, check material settings. Once again I'm checking, go to plant and execute. अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर मेरा एक्टिव हो गया। इसका मतलब मेरा मटेरियल लेजर अभी एक्टिव हो गया है, करेक्ट। करेक्ट और नॉट। अभी चेक बॉक्स अभी क्लिक नहीं, चेक बॉक्स मेरे और टिक नहीं था ना, अभी क्या हो गया, टिक लग गया। इसका मतलब सिस्टम कह रहा है भैया आपका लेजर एक्टिवेट हो गया है आपके वाले प्लांट पर। इसके बाद एक टी कोड और है, नाउ रन टी कोड CKM start, that's it. Now let's go here, run t code slash nckmstart, प्लांट क्या है मेरा BAT0, और अभी यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, टेस्ट रन let me remove test run from here, yes I remember that, remove test run and click on execute। ये ठीक कोड है, ये भी मैंडेटरी है, click on execute। प्लांट क्या है मेरा BAT0, कंट्रोल C, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। अब स्क्रीन आएगी आपके पास में, यहाँ पर स्टार्ट इमीडिएटली, कंफर्म, नेक्स्ट आएगा राइट, let me paste that first, now here select आउटपुट डिवाइस, बाय डिफॉल्ट सिस्टम में प्रिंटर होता है LP01, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना, इमीडिएटली। बाय डिफॉल्ट रहेगा LP0 सब में आएगा, इमीडिएट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपका एक नया पॉपअप आ जाएगा एंड जस्ट क्लिक ऑन एंटर बटन, दैट्स इट, कंट्रोल एस। नाउ गो हियर, प्रेस एंटर, डन। जॉब प्रोडक्शन स्टार्टर फॉर यूजर एन हाना एमएम इज एक्टिव, जो मेरी यूजर आईडी थी ना हाना एमएम, इसका मतलब प्रोडक्शन स्टार्टअप की जॉब है वो मेरी बैकएंड में स्टार्ट हो गई, दैट्स इट। ये मेरा इतना सा काम है मटेरियलाइजर एक्टिवेट करने के लिए। अब मैं ट्राई करता हूँ अपने सेम प्लांट के लिए मटेरियल क्रिएट करने के लिए, अब देखते हैं। आइडियली दिस इज द प्रोसेस इन रियल टाइम एज वेल, दिस इज हाउ मटेरियलाइजर एक्टिवेटेड, नाउ सिस्टम शुड अलाउ यू टू क्रिएट अ मटेरियल एट योर प्लांट। ये प्रैक्टिस सर्वर है, लेट्स सी कहीं किसी ने कोई चेंज तो नहीं कर दिया, विल सी दैट। अब उठा देता हूँ मैं, लेट मी क्रॉस इट, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है ना, स्लैश NM01 मैकेनिकल इंजीनियरिंग रॉ मटेरियल, प्रेस एंटर, data1 data2 परचेजिंग accounting 1 and accounting 2, right? Now go to MM01 and try to
create a material. So now here I go. Now let me press enter. My plant was B80. मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया था ना, system was not allowing me, right? System was not allowing me to get a material. Now let me check if system is allowing me or not. Now press enter. System ने allow कर दिया मेरे को. कहीं understood or not? System ने allow कर दिया मेरे को. Yes, sir. सर ये आपको लेजर एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको हर एक प्लांट पर, ओके? Otherwise, system will not allow you to create a material at your plant. At plant B80 EA metal group डाल दो. Understood? So this is the process to activate a material laser at your plant, and you all have to do this activity. Then only you will able to create a material at your plant. अभी आपको plant दे रहा था कौन सा 5001, right? But now I'm telling you, you have to create a material at your plant, okay? अगर आपको अपने प्लांट का मटेरियल क्रिएट करने पड़ेंगे तो आपको लेजर एक्टिवेट करना ही पड़ेगा. अंडरस्टूड? तभी जाके हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे. प्रेस एंटर, प्रेस एंटर, प्रेस एंटर. देखो ये इलेक्ट्रिक का चेक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये अभी एक्टिव होकर आया है. अभी आपको दिखाऊं पिछले वाले ना चेक बॉक्स, तो वहां पर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना? ये जो मेरा है अकाउंटेबल, राइट? ये देख रहे हो एमएल एक्टिव, ये चेक बॉक्स ये मेरा एक्टिवेट हो गया है बिकॉज आई हैव डन दैट लेजर सेटिंग एक्टिव, राइट? तभी जाके मेरा ये check box क्लिक होता है. somebody ask you where I can see that ML active check box, that is in accounting one view. मेनली किसकी एक्टिविटी है? फीको की एक्टिविटी है. बट एज एम कंसल्टेंट यू शुड ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ML एक्टिव कि ये कैसे एक्टिव होता है, ये चेक बॉक्स मेरा कहाँ होता है. अंडरस्टूड? सर कैन आई आस्क समथिंग? हाँ प्लीज आस्क. सर ये जो प्रोसेस है ये हमारे एमएम में नहीं आएगा ना, ये फीको कंसल्ट ये मतलब एमएम में फीको का? नहीं आएगा, बट आपको सीखना पड़ेगा ये. ठीक है. क्योंकि अगर आप कोई प्लांट बनाओगे, और आप पता भी होना चाहिए रियल टाइम में क्या हो सकता है ना, कि मान लो somebody can ask you in a quality server, right, or something, right, if they're doing some practice, right, and your team lead can ask you, okay Rohan, can you please check with the material for this plant, right? So they can ask you. ओके बट आपको पता होना ओके चाहिए दैट ए न्यू फंक्शनलिटी इन S/4HANA, ठीक है ना? एंड यू शुड अवेयर कि एमएल एक्टिव का कंसेप्ट है, और इसके जब तक एक्टिव नहीं होगा यू विल नॉट एबल टू. देखो मटेरियल तो एमएम कंसल्टेंट का ही पार्ट है, राइट? एमएम का पार्ट है, और ये ये एक्टिव एमएल ये फीगो का पार्ट है. तो दोनों कनेक्टेड है ना आपस में, राइट? जब तक वो एक्टिव नहीं होगा यू विल नॉट एबल टू गेट अ मटेरियल. तो यू शुड नो दैट प्रोसेस एज वेल, राइट? कि कैसे एक्टिव होता है. अंडरस्टूड? ओके सर. यस सर. ये नया कंसेप्ट है हना में, ठीक है ना? आई विल टेल द यूज ऑफ दिस, कि इसका क्या मीनिंग है, क्यों उसको एक्टिव करते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है, बट अभी नहीं, बट आगे आपको इसका मतलब बताऊंगा मैं. अंडरस्टूड? ठीक है. प्रेस एंटर. सॉरी वेरी डालनी पड़ेगी यहाँ पर, भूल गया, सॉरी. 1000. That's it. In a simple way, you will create a material, right? As we create normally. So now I have created a material at my plant, right? BAT0. अब सिमिलर वे में गाइस, अभी मैं इसका कवर नहीं करूंगा, ठीक है ना? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? यू पीपल विल नॉट एबल टू प्रैक्टिस, ठीक है? तो अभी हमने क्या कवर कर लिया है ओवरऑल टिल नाउ? वी हैव कवर्ड एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, करेक्ट, कंप्लीटली एंड टू एंड. वी हैव कवर्ड मटेरियल मास्टर एंड टू एंड, राइट? कंप्लीट हमारा हो गया मटेरियल मास्टर. Complete material master end user activity, how to get a material, and all the configuration related to material master, material type, number, range, material group configuration, industry sector configuration, right? And apart from this हमने क्या और कवर कर लिया? हमने ये भी कवर कर लिया है लाइक मटेरियल एक्टिवेशन, वो भी कवर कर लिया है. ठीक है गाइस, क्लियर हो गया ये?
एनीबडी एनी डाउट? नो सर। इतना सारा आपको कवर करना है। और बिफोर वी मीट इन नेक्स्ट क्लास ना, उससे पहले आप सबको अपने प्लांट पर, ठीक है ना, अभी तो मैंने बनवाए थे मटेरियल आपसे दूसरे प्लांट पर, राइट? यू ऑल हैव टू डू material activation at your plant and then you have to create a material at your plant. तो हमारा दो कंसेप्ट अब तक, दो पूरे कॉन्फ़िगर पार्ट हमारे डन हो चुके हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन एंड मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड टू एंड। करेक्ट और नॉट गाइस? यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है? नो सर। चलो भी एक कंसेप्ट और बताता हूँ, ठीक है? एक और कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना? इसके बाद अभी दूसरा सेशन कनेक्ट करते हैं 15-20 मिनट के लिए। आई विल टेल यू फ्यू मोर फंक्शनलिटी रिलेटेड टू मटेरियल मास्टर। ओके।